Strange it may appear, Mr. Savarkar and Mr. Jinnah, instead of being opposed to each other on the one nation versus two nations issue, are in complete agreement about it. Yeah, shame. Shame. Both agree. Not only agree, but insist that there are two nations in India. One the Muslim nation and the other the Hindu nation. I request the Home Minister to withdraw that allegation, because we in the Congress believe in that one nation. You don't believe in it. Sir, the next point, और गृह मंत्री जी ने सही कहा कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है. हाँ, ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक बिल है. आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए ऐतिहासिक बिल है. और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे. मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि लाखों लोग की रात खत्म नहीं होगी, ये काली रात खत्म नहीं होगी. आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं. सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया. You said rise above politics. I request you, Home Minister, you rise above politics, because this is nothing but politics. You are destroying the future of this country. Sir, I have the following things to say and following objections about this bill. First, this bill gives legal color to the two-nation theory, which I have already stated. Two, religion cannot be a factor in the acquisition of citizenship that has been rejected by the Constitution of India. So there are three concepts that you must understand, which is the basis of citizenship. Number one, born in the territory of India. Number two, my parents were born in the territory of India, descent. And number three, that I am ordinarily resident in the territory of India. There is no fourth concept on the basis of which citizenship can be granted. So I might tell you something very interesting. I belong to a family which used to live in Lahore. I came to India and I was born here in 1948, but my brothers, my sister, my parents, my grandparents were all born in Pakistan. We were all refugees. When we came to India, we were not citizens of India. Why? Well, because we were not born in the Republic of India. Therefore, we were not citizens of India. But there was a provision in the Constitution which said that if you are born in an India of 1935, undivided India, then you shall be a citizen of India. But that was not the only thing. I had to become a resident of India. I had to come to India 6 months prior to July 1948. And if I came to India 6 months prior to that, I would have been a citizen of India. So residence, ordinary resident, bona fide residence is an essential element for being a citizen. For those who came after the 19th of July 1948, they had to file an application before an appropriate authority. And in that application, before they filed it, they should have been resident in India for the last 6 months. They too could not get citizenship. So that's the basis and the foundation of citizenship. That's why Mr. Chidambaram asked, who has advised you to do all this? Who has advised you? Who has given you that opinion from the Law Ministry and the Attorney General? None. Let me tell you something else now, sir. Under Article 11, there is a provision which says that through another act, through a law made by Parliament, somebody can acquire citizenship or terminate citizenship. That is the Citizenship Act. Now, so the Citizenship Act, some very interesting provisions. Let me just tell you, just a couple of them. The Citizenship Act says that if you are born in the territory of India from January 26, 1950 to July 1, 1987, you shall be a citizen of India. If you are born in the territory of India from July 1, 1987 to when the 2003 bill has been passed, which was passed in 2004, which is the Citizen Amendment Bill, you shall be a citizen of India if one of your parents is a citizen of India. And if you are born after 2004, you shall be a citizen of India if one of your parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant. That is the condition of the Citizenship Act.
If one of the spouses is an illegal migrant, you can't be a citizen of India. Now, sir, what amendment have you brought? Just think about it. What does your amendment say? Let me just tell you what it says. I'm sure you've read it. Provided that you are making an amendment to 2(1)(b). You say, provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government by or under clause C of subsection 2 of section 3 of the Passport Entry into India Act 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act 1946 or any rule or order made thereunder shall be treated as an illegal migrant, shall not be treated as an illegal migrant for the purposes of this act. Now please tell me, the Foreigners Act deals with people who are declared to be foreigners. The Passport Entry into Act deals with people who have entered into India without a valid document. And now in your objects and reasons you have said that these are all people who have been persecuted. Where is the provision for persecution in the Act? There is no provision for persecution. There is no provision for persecution. If a man came from Bangladesh or from Pakistan into India in 1972 and he has been an illegal migrant after 1972 till date, how will he prove, how will you say that he has been persecuted? Unless he says that he was persecuted. Amongst all the people who have come to India without any legal documentation, has anybody said that they have been persecuted? Do we have a law here which says that you apply and say that you are persecuted and you shall be granted citizenship? It's very interesting, Mr. Nadda in the course of his speech mentioned Dr. Manmohan Singh and what he said, but he didn't mention what Advaniji said. I wish he had. Because Dr. Manmohan Singh said, look, if people have been persecuted and they have come from our neighboring countries, you must give them citizenship. उनको नागरिकता मिलनी चाहिए. और अडवाणी जी ने क्या कहा? वो मैं आपको जवाब देता हूं. उन्होंने कहा, there are various kinds of allegations made that you are making discrimination between this and that, which we do not propose to do. We always say that a person who has to flee because of religious persecution is a refugee. Bona fide refugee, and he cannot be regarded on par with the illegal immigrant who may have come here for any reason, even for economic reasons. If he is an illegal immigrant, he is an illegal immigrant. This is what Advaniji said. Now, if these people are illegal immigrants, on what basis you say that they have been persecuted? Has anybody said that they have been persecuted? There are also other illegal immigrants, I won't name the religion they belong to, who have also come, who are also illegal immigrants. So how do you discriminate between one illegal immigrant and another illegal immigrant? And how do you say, आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग तो persecute हुए थे, आपको कैसे मालूम कि वो persecute हुए थे? मैं उदाहरण देता हूँ. एक शख्स यहाँ 1972 में आया, 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई. आज वो है नहीं, उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटीजनशिप दो. आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं. तो बच्चों को सिटीजनशिप कहां से मिलेगी? किस आधार पे दोगे आप? वो मापदंड क्या है? किसी ने कोई कहीं गया है, बोला है, इन जो लाखों लोग हैं जिनकी आप बात करते हो, 19 लाख, चलिए 19 लाख की बात करते हैं, उनमें कितने हिंदू हैं? 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं. लेकिन किस ऐसे हिंदू ने कहा है कि मैं परसिक्यूट हुआ था? आपको साहब बड़ी गलतफहमी है. उन्होंने मालूम क्या कहा है अपने लेगेसी पेपर्स में कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं. उन्होंने सब डिक्लेरेशन दी है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं. आप उसको इस विधेयक के द्वारा झूठ बुला रहे हो. प्लीज कंक्लूड. जो शख्स वन सेकेंड सर, जो शख्स कह रहा है कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो नहीं नहीं तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो, तुम कहो तो तुम तो बांग्लादेश से आए थे और क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे. ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से. आपका मकसद क्या है?
आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहां हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। Sir, दूसरी बात सर, just I'm just finishing. Just my third. there are four Right, more sir. speakers from your Sir, party. few minutes. Four more Just give me, speakers. just third point, sir. They are targeting a community without naming it. In this bill, they are targeting a community without naming it. It violates the basic structure of the Constitution. It is divisive and exclusive. It will destabilize our polity, and 18 to 20 million people will not trust us. It weakens the foundation of our culture, of our beliefs, of our ethos. It has consequences that you can't even imagine. And this is part of your political strategy. The last thing I want to say, sir, is this, that this is legally tenable and legally reprehensible, morally reprehensible. Those who have no idea of India cannot protect the idea of India. Don't convert this Indian Republic into a Jurassic Republic where there are two dinosaurs. Thank you. Thank you. भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर असंदिग्ध तरीके से इस बात की घोषणा करी थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं सबको कहना चाहता हूं, ये सब साथियों को कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले ही ये इरादा देश की जनता के सामने रखा था, जिसको देश की जनता ने जन समर्थन दिया है और देश की जनता ने शासन करने का मंजूर। लोकतंत्र के अंदर जनादेश से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हमने इस घोषणा पत्र के अंदर लिखा था, हम पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको लागू करें। साथ में हमने यह भी कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में उन वर्गों के लिए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है, और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा के लिए भी हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है उसको हम एड्रेस करेंगे, वो भी हमने कहा था। मान्यवर, मुझे आनंद है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार चल रही है, आज मोदी जी के नेतृत्व में मैं जो बिल लेकर इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें हमारी ये दोनों घोषणाओं का आज हम इसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। तीनों पड़ोसी देश इनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का अमेंडमेंट लेकर आए हैं, और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके अधिकारों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनके सामाजिक पहचान को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर हम चिंता करते हुए प्रावधान लेकर आए हैं। और बिल के डिटेल प्रावधान में मैं बाद में जाऊंगा, मगर सरल भाषा में, क्योंकि देश की जनता भी इस सदन की बहस को देख रही है बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, तो सबके मन में स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं सरल भाषा में ये बिल क्या है कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
जो 3 देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं, वो तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये लघुमती के लोग, वहां की लघुमती के लोग जो भारत में आए हैं, उनको किसी भी समय आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का इस बिल में प्रावधान है। इसका मतलब आजादी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले वो 3 देशों के माइनॉरिटी के लोग जो यहाँ आए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के हितों की चिंता भी की है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। मान्यवर, लोकसभा में चर्चा चली, कुछ अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां है, इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए, इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए, वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा, इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो 3 राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनको ये पूछना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे ये बताइए, मैं जब जवाब देने खड़ा हूंगा तब पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। आपके एक एक जो शंकाएं हैं, सवाल है, आपका एक एक स्पष्टीकरण जो मांगेंगे, वो सब स्पष्टीकरण करूंगा। मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है मान्यवर, वो जाए कहां? कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, किसी को भी चिंता करने की। कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है। माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसमें किसी को मान्यवर, आप सुनिए, बाद में जब आपको मौका मिलेगा आप बोला बढ़िए। मेरा सभी विपक्ष के लोग, विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं, उनको चुनौती है कि जब आपको बोलने का मौका मिले, मुद्दा के साथ पॉइंट उपस्थित करिएगा। मैं हर एक चीज का जवाब देने के लिए बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं और दूंगा। बशर्ते आप बैठिएगा, चले मत जाइएगा, आप बैठिएगा, मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा। मान्यवर, मैं बिल के कुछ प्रावधानों को बताकर मेरा प्रारंभिक भाषण समाप्त करूंगा। मान्यवर, ये बिल के अंदर हम जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(ब) में जो प्रावधान है कि पासपोर्ट, वीजा और ट्रैवल दस्तावेज के बगैर जो प्रवासी भारत में आते हैं या जिनका पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर कर जाता है, कालबाह्य हो जाता है, उनको अवैध प्रवासी माना जाता है। अब हम इसके अंदर सुधार लेकर आए हैं मान्यवर, और
अब ये जो मैंने 6 वर्ग कहे, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, ये जो 3 देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसमें से उनको मुक्ति दे दी गई है। नागरिकता अधिनियम की नई धारा 6B भी लाने का प्रस्ताव है मान्यवर इसमें, और इसमें प्रस्ताव है कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके माध्यम से वो भारत की नागरिकता ले पाएंगे। यह प्रावधान भी किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको जिस तिथि से वो भारत में आए हैं उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब होता है मेरे बंगाल के अंदर ढेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं, अगर वो 55 में आए, 60 में आए, 70 में आए, 80 में आए, 90 में आए या 2014 की 31 दिसंबर के अगले दिन आए, वो सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी कि जिस तिथि से वो आए हैं, तो उनको कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। मान्यवर, अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है तो ये केस ये बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा। वो लीगल प्रोसीडिंग उनको सहन नहीं करनी पड़ेगी, उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। इस धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक अगर किसी भी प्रकार के अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार और प्रिविलेज से वंचित नहीं कर दिया जाएगा। मान्यवर, कई जगह कुछ जो शरणार्थी आए हैं, छोटी मोटी दुकान खरीद लिए हैं, अपना काम कर रहे हैं, कानून की दृष्टि में हो सकता है वो अवैध हो, गैर कानूनी हो, मगर ये बिल उनको प्रोटेक्ट करता है कि इन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है उसको रेगुलराइज ये बिल कर देगा, उनकी वो स्टेटस को कहीं पर भी नहीं करेगा। जो शब्द उठते, शादी हुई, बच्चे हुए, ये सब चीजों को ये बिल इसको रेगुलराइज करेगा। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में दिए गए प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाते हुए शेड्यूल 6 छठे शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अब मणिपुर, पूरा मणिपुर भी नोटिफाइड हो चुका है। जनजाति इलाकों पर यह बिल लागू नहीं होगा। इसी तरह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973 के तहत इनर लाइन परमिट के इलाके पूरे मिजोरम, अरुणाचल, अधिकांश नागालैंड और मणिपुर, ये सारे एरिया में भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। मान्यवर, आसाम का जहां तक सवाल है, मैं आज इस सदन के सामने एक कटु वास्तविकता रखना चाहता हूं। मान्यवर, आसाम के अंदर 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आसाम एकॉर्ड किया। आसाम एकॉर्ड के अंदर आसाम के लोगों को उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक पहचान, भाषाई पहचान और चुने हुए फोरम में उनके रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 6 बनाया गया। क्लॉज 6 के अंदर एक प्रावधान था कि क्लॉज 6 के माध्यम से एक कमिटी गठित करेगी भारत सरकार, और वो कमिटी ये सारी चीजों जो आसाम के मूल निवासी है वो अपनी पहचान बना पाए, इसके लिए चिंता करेगी। श्री राजीव गांधी ने बड़े उदात्त भावना के साथ इसको साइन भी किया। आसाम के लोग खुश भी हो गए, फटाके जलाए और खुशियां मनाई, आंदोलन समाप्त हो गया। मगर 1985 से लेकर जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक क्लॉज 6 की कमिटी ही नहीं बनी। 35 साल तक मान्यवर किसी को चिंता ही नहीं हुई कि आसाम के लोगों के ये भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा,
संस्कृति की रक्षा, सामाजिक पूरे परिवेश की रक्षा, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों पर जो करना था वो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, आप बोले तब बताएगा कब हुआ? नहीं हुआ। वो तब हुआ जब इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। It will not go on record. It will not go on record. मान्यवर, I have to name you, madam. मान्यवर, मैडम रानी जी बैठ जाइए. आसाम It के is not the way. I don't आसाम know. के सभी Why are you doing this? सभी मूल आपका मौका निवासियों आएगा को तब मैं- आप आराम से बोलिए. आसाम के सभी मूल निवासियों को मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज 6 की कमेटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी। इसमें किंचित मात्र शंका मत रखिए, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलने वाली सरकार है। और हम मानते हैं कि आसाम आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं वो सारे लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आसाम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का अब समय आ गया। और मान्यवर, इसीलिए हमने क्लॉज 6 की कमेटी बनाई है, जिसमें आंसू भी है, जिन्होंने आंदोलन किया था। आसाम गण परिषद के हमारे साथी भी हैं। मैं सबको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी जल्दी हो सके आप क्लॉज 6 की कमेटी का रिपोर्ट कृपया भारत सरकार को भेज दीजिए, जिससे भारत सरकार आपके हितों की रक्षा कर पाए। No, this is misbehaving. Please sit down. This will not go on record. Nothing should be shown. मान्यवर, Nothing should be shown. आसाम के अंदर बीटीसी, कार्बी, आंगलोंग, दिमा हसाव सुपरफास्ट एरोनाई एक्सप्रेस का नामकरण भी हमने किया है और ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का आधुनिकीकरण भी किया है। मान्यवर, जब मैं एक बताना चाहता हूं कि हमने जब ये बिल लेकर आए हैं तब ढेर सारी शंकाएं स्वाभाविक है यहाँ के और प्रतिपक्ष की सभी सदस्यों के मन में है। मेरा इन सभी से निवेदन है, वैसे राज्य लोकसभा में मैंने डिटेल इसका जवाब दिया भी है, मगर फिर भी कुछ ऐसे बिंदु पहलू या तो लोकसभा में मैंने जो स्पष्टीकरण किया है वो हो सकता है पर्याप्त न हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं वो पॉइंट वाइज यहाँ पर रखें। इस बिल को राजनीति की पक्षापक्षी की राजनीति से ऊपर उठकर आप इसकी चर्चा को कंट्रीब्यूट करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरेक आपकी शंका का, हरेक आपके मन में उठे सवाल का और हरेक आपकी जो स्पष्टता चाहिए इसका समाधान करने के लिए मैं बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं। बड़ी धीरज के साथ सबको सुनकर मैं इसका समाधान करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। मगर कृपया जब लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर उनके जीवन के अंदर कई दशकों से जो प्रताड़ना वो झेल रहे हैं, जो अपमानित जीवन जी रहे हैं, उनको एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। उनके लिए बिल पारित होते ही कल का सूर्य सुवर्णमयी सूरज उगने वाला है। इनके जीवन के अंदर एक नई आशा की शुरुआत होने वाली है। इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत होने वाली है। इसमें हम सब शामिल हो। Mr. Ripon Bohra, और what time if you raise, I will have to name you, and you will lose both opportunity here and evening also. मान्यवर, Please, if you want to add voice or you want to make a noise, choice is yours. मान्यवर, मैं सभी सवालों का बड़े धैर्यपूर्वक जवाब दूंगा, इतना विश्वास दिलाकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और सभी सदस्यों को कहता हूं कि कृपया जो जो आपके मन में सवाल है इस सदन के पटल पर रखें, मैं इसके जवाब दूंगा।